and welcome to the NDTV Auto Show. I'm your host Mugdha Mishra. Let me first tell you what's on the show today. Much before the launch of 4th Gen BMW X3, we get you its first drive review. MG Windsor EV put through a range test. How good is Mercedes-Benz EQS 580? We will tell you. We ride the TVS Apache RR 310 at the Coast Racetrack. If you are in the market to buy the Maruti Suzuki Swift but are confused whether you should go for Swift or Baleno or Glanza, we will get you that comparison very soon. But today we are going to focus on some first drive reviews. One of them is our TV exclusive. I'm talking about 2025 BMW X3. Yes, BMW is going to launch its popular SUV X3 in the early 2025 and I got to drive it in Munich for the first time. This is a TV exclusive. Here is what I thought of the X3. This is the 4th generation and it has grown. It has grown in size. The 4th generation BMW X3 is expected to come to Indian shores in Jan-March quarter of 2025. There are very few straight lines that you can see. Big kidney grille with a very different treatment. As we have seen in many BMWs, illuminated grille is also on offer. The front bumper houses large air vents and comes in piano black, giving a much needed visual break on an otherwise voluminous front. This is the M Sport edition and hence you get the M Sport calipers here. You get the M badging on top and these are 20-inch alloys, but in India we'll have to wait and watch what size comes. यहाँ पर जो ये rear windscreen area है ये पहले से छोटा पता चल रहा है and the reason is कि ये जो roof line है वो थोड़ी सी कूपेश हो गई है, पीछे की तरफ टेपर होती है. Then यहाँ पर आपको ये rear spoiler दिखाई देता है, inbuilt rear spoiler, और उसकी वजह से ये जो glass area है ये थोड़ा सा छोटा पता चल रहा है. Below you will see this blacked out bumper area. Notice there are no exhaust tips here, not even for exhaust. Exhaust pipe नीचे है, ये बिल्कुल plain bumper area यहाँ पर मिलता है. But this tail lamps are really interesting, arrow-shaped tail lamps with this some satin effect and a white line in between. It looks really neat. Everything is brand new. A new layout to the dashboard, looks lot more flowy, lot more integrated. The whole layout is driver centric. ये जो center console है ये पूरी तरह से redesign कर दिया गया है. यहाँ पर आपको light bar दिखाई दे रहा है और ये light यहाँ पर जो colors हैं वो आप change कर सकते हैं. The dashboard is covered in this textured material. This is very interesting because this has been derived from PET bottles. So a little bit of focus on sustainability visible here. Redesigned steering wheel, flat bottom, looks quite sporty and nice, and you also get your paddle shifters here and also a boost. The wheelbase hasn't changed, तो यहाँ जो आपको second row पर जगह मिलती है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं बदली है, उतना ही leg room मिल रहा है, लेकिन ये seats काफ़ी comfortable हैं. यहाँ पर thigh support अच्छा मिल जाता है, थोड़ा upright आप बैठते हो, but otherwise these are comfortable firm seats. There are many engine choices that will be available with the X3 in the international market. However, we are expected to get one petrol and one diesel, both the 2-liter one. मैं अभी जो गाड़ी चला रही हूँ वो 2-liter पेट्रोल इंजन है, 209 HP की पावर मिलती है. Claimed 0 to 100 का आंकड़ा करीब 7.6 seconds का है. India-bound petrol and diesel variant will be equipped with a 48-volt mild hybrid system. ये जो 209 HP की पावर है, it feels adequate for this car. बहुत ज़्यादा fun तो नहीं पता चलता कि बहुत ज़्यादा आपके पास performance available है. But it's good enough to not leave you asking for more. Once you shift to sports mode, the response clearly changes. There is a big difference between the way the car responds in efficiency mode and in sports mode. In efficiency mode, power comes in a lot more linearly. Sports mode, the car really feels a lot more eager to deliver. But overall, this is actually a relatively quiet cabin. You don't hear much of road noise, not much of wind noise. Ambient noise is also pretty contained, so you can have a nice comfortable drive in X3. The 4th gen BMW X3 has grown in size and comfort. The X320 is not fun to drive, but is smooth and comfortable. In Indian context, the fact that it now offers more space and loads of tech makes it a product worth looking forward to.
JSW MG Motors India has launched its crossover utility vehicle, Windsor EV. Find out with me how much is its range, what is this battery as a service and how does it perform with me in this review. लेकिन आज इसका एक रेंज टेस्ट करेंगे। हम सुबह से शूट कर रहे थे और यहाँ इस लोकेशन पर आए तो अभी 92% चार्ज ये दिखा रहा है, 293 किलोमीटर्स की रेंज बता रहा है। बट बिफोर आई स्टार्ट द ड्राइव आई वांट टू सेट द ORVM एंड इट इज़ अ tedious process. First I have to switch this button on the screen and then you can see it's right hand side, so I can fix the right hand side's ORVM but through this button, and it doesn't go down from this, it goes down by this toggle switch, so it's a little bit of a concentration exercise. Everything in this car that you need to manage except for your indicators and your gear selector, everything else has to be done on this screen and that makes life really challenging. तो प्लान है कि थोड़ा सा शहर में चलाएंगे, थोड़ा ट्रैफिक वाला एरिया होगा और थोड़ा सा हाईवे पे चलाएंगे और देखेंगे कितनी रेंज निकल कर आती है। ड्राइव मोड में हम नॉर्मल मोड में चला रहे हैं बिकॉज दैट्स व्हाट पीपल जनरली यूज़। तो नॉर्मल मोड में आपको कितना रेंज मिलती है इस पर फोकस रहेगा और इसके साथ ही जो रीजन है वो भी आपको यहीं से मैनेज करना है, अगेन स्क्रीन से ही मैनेज करना है। एनर्जी रिकवरी वो भी हमने नॉर्मल पर ही रखी है अभी। तो इसके लुक में दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक तो ये क्रॉसओवर यूटिलिटी व्हीकल है तो देखना होगा हाउ ईजिली इंडियन मार्केट्स एक्सेप्ट दैट, एंड दूसरा थोड़ा तो अलग है इसका लुक। अगेन वहाँ पर भी सब्जेक्टिव है ओपिनियन, लेकिन मुझे लगता है इंडियन कस्टमर्स को उसके यूज टू होने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। सेकेंड रो सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं, थाई सपोर्ट बढ़िया है, पीछे जो सीट है वो 135 डिग्रीज तक रिक्लाइन हो जाती है। तो अगर आप आराम करना चाहते हैं, यू कैन डेफिनेटली डू दैट ऑन द सेकेंड रो। यू गेट अ वायरलेस चार्जिंग पॉइंट हियर, यू गेट USB Type A and Type C charging point in the lower part of the center console, and at the rear too you get a charging point, that's a Type C charging point. You might find it difficult to fit in your larger size bottles and the rear door, however there is enough space on the front door to fit those in. I'm keeping the temperature at 23 degrees centigrade. It's a sunny day और इसमें जो ग्लास एरिया है विंडसर में वो काफ़ी ज़्यादा है। विंड स्क्रीन काफ़ी बड़ी है, स्लांट पर है तो वहाँ से सन काफ़ी ज़्यादा आता है। It gets this massive 15.6 इंच टच स्क्रीन, पूरी लैपटॉप की स्क्रीन लगती है और उसके बगल में ये 9 इंच का ड्राइवर डिस्प्ले काफ़ी छोटा लगता है। और इस डिस्प्ले का एक और प्रॉब्लम है और वो ये कि इसमें जो फॉन्ट्स हैं, आपकी स्पीडोमीटर जो है उसका साइज़ तो ठीक है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें जो लिखी हुई है, डिस्टेंस, ओडो, वो सब बहुत ही छोटा है। I like the fit and finish of these interiors. The quality of plastic is not great, but it's not scratchy either. It's pretty smooth. I like this gold, matte gold finished inserts. This is your doorknob, and they also look good, especially if you like gold. There's enough space for 3 people to sit on the rear seat. The center passenger gets a movable headrest, and because of the flat floor, will definitely sit a lot more comfortable. You get one motor up front which churns out 136 HP power and a torque of 200 Nm. Battery capacity is 38 kilowatt hour. Now let's talk about ride quality. The suspension seems to be on the stiffer side, and you will end up feeling all the bumps and undulation of the roads on the inside too. And there is a fair bit of body roll जो कि आपको गाड़ी के अंदर पता चलेगा। तो अगर आप क्विकली लेन शिफ्ट करते हैं तो आपके पैसेंजर्स आपसे कंप्लेन करेंगे। The cabin is quiet inside. You hear wind noise, but the road noise is contained, and ambient noise is also very well contained. You get 4 drive modes: Eco Plus, Eco, Normal and Sports, and the power delivery is quite linear in Normal and even in Sports Plus mode. BaaS या फिर बैटरी एज अ सर्विस को इस तरह से समझिए कि ये एक बैटरी के लिए लोन दिया जा रहा है और आपको हर महीने EMI पे करनी है। 4 फाइनेंसर्स हैं जिनसे आप ये लोन ले सकते हैं और उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस थोड़ी बहुत अलग है, एंड यू कैन डिसाइड व्हाट सूट्स यू बेटर। अब इस स्ट्रक्चर का फ़ायदा ये हो रहा है कि भले ही ये ऑन द फेस ऑफ इट कॉम्प्लिकेटेड लगे, एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, इट्स बेसिकली योर बैटरी ऑन लोन एंड यू पे EMI, बट उससे जो कीमत निकल कर आई है
that 9.99 lakh rupees, लोगों की नजरें विंसर ईवी के ऊपर जरूर जा रही हैं और इसके बारे में बातचीत बढ़ गई है. MG has also released the ex-showroom prices of Windsor EV. Prices start from rupees 13.5 lakhs and go up to 15.5 lakhs. Now we are back from where we started and we drove around 150 kilometers. Roughly 37% charge is left and we have got around 6.2 kilometers per kilowatt hour. So on that calculation basis, I think you can expect a total range of around 228 to 240 kilometers because we were majorly on the highway and we did test the response in sports mode also. So I think fair to assume that 250 kilometers will be a realistic range for Windsor EV. We will slip into a short break, but you don't go anywhere because after the break, we will get you the review of Mercedes EQS 580 SUV. Welcome back. You're watching the NDTV Auto Show. Mercedes India is on a launch spree. They are launching one new product after the other. Recently, they launched the EQS Maybach, their flagship EV SUV, and now they have also launched the EQS 580. Dhruv Attri gets you the review. अब EQS 580 को आप Mercedes की जो GLS SUV है, 7-सीटर SUV है, उसका एक इलेक्ट्रिफाइड वर्जन ही समझ लीजिए. और इलेक्ट्रिफाइड वर्जन्स का क्या है ना, उनको कन्वेंशनल नॉर्म जो होता है डिज़ाइंस का वो फॉलो नहीं करना होता है. और यहाँ पर भी आपको कन्वेंशनल डिज़ाइन नहीं देखने को मिलेगा. ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक सा डिज़ाइन है एंड Mercedes की EQ रेंज ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स है वही फॉलो करता है, लेकिन साइज़ में काफ़ी बड़ा है, काफ़ी साइजेबल है. ट्रैक कोएफिशिएंट वो भी काफ़ी बढ़िया है. सामने से एरोडायनामिकली डिज़ाइंड है गाड़ी जस्ट टू इंक्रीज द रेंज. बट लुक्स के मामले में मुझे ये गुड लुकिंग कार नहीं लगती है. आपको कैसी लग रही है आप कमेंट करके बताइए. EQS 580 SUV के कैबिन में आपको हूबहू EQS 580 सेडान वाला लेआउट देखने को मिलेगा. ये बड़ी सी 56 इंच की स्क्रीन देखने को मिलती है, हाइपर स्क्रीन इसे बुलाते हैं. MBUX सिस्टम लगा हुआ है. इसके अलावा इसमें आपको 5 जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है. EQS के नाम में S जोड़ता है ये रियर सीट एक्सपीरियंस. यहाँ पर आप देखिए हेड रूम ढेर सारा है, नी रूम और भी बहुत बढ़िया है, लेग रूम की कोई कमी नहीं है. सीट को मैंने आगे वाली अपने हिसाब से सेट किया हुआ है एंड अंडर थाई सपोर्ट साइड वाले पैसेंजर्स के लिए काफ़ी बेहतरीन है. वो अलग बात है कि यहाँ पर आपको कोई सन ब्लाइंड दिया ही नहीं गया है, जो बहुत बड़ा मिस है इस गाड़ी के हिसाब से. लेकिन यहाँ पर आपको इस आर्मरेस्ट में ये 7 इंच का टैबलेट मिल जाता है. इस टैबलेट से आप गाड़ी के ढेर सारे कंट्रोल कर सकते हैं फंक्शंस को. 15 स्पीकर 710 वॉट का बर्मेस्टर ऑडियो सिस्टम मिलता है जिसमें डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट भी है. तो प्रॉपर इन कैबिन थिएटर एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है. अब ये सीट्स कंफर्टेबल भले हों, लेकिन यहाँ पर आपको वेंटिलेशन फंक्शन वगैरह नहीं मिलता है, ना इसमें मसाज फंक्शन मिलता है. यहाँ पर आपको हीटिंग फंक्शन मिलता है जो इंडियन कंडीशंस में काफ़ी कम इस्तेमाल होगा. रियर सीट्स में 30 डिग्री का रिक्लाइन भी है. अब मैं यहाँ से एंट्री कर सकता हूँ. अब वो जो एंट्री आपने देखी बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल नहीं थी, बट इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट वंस एज फार एज थर्ड रो एंट्रीज आर कंसर्न्ड. अंडर थाई सपोर्ट वगैरह बिल्कुल भी नहीं मिलेगा. एटलीस्ट यहाँ पर हेडरेस्ट वगैरह एकदम आपकी हाइट तक आता है एंड आपको स्टोरेज स्पेसेस वगैरह काफ़ी बढ़िया मिल जाती हैं. एंड एक आर्मरेस्ट भी दिया गया है, छोटा सा है लेकिन काम का है. EQS 580 SUV की ड्राइवर सीट से आप कितना ऊंचा बैठते हो, SUV वाली फीलिंग आती है. आपको इनोवा जितनी जो हाइट होती है ना, क्रिस्टा जितनी, आप उतना ऊंचा बैठते हो तो आपको थोड़ा कमांडिंग व्यू मिलता है. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस गाड़ी में जो परफॉर्मेंस है बेहतरीन है. 7-सीटर SUV होने के बावजूद मैं अभी होटल से जब निकला था तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था और मैं देखना चाह रहा था कि परफॉर्मेंस कैसी है. और मुझे लग रहा था कि मैं काफ़ी एक लीश को पकड़ के बैठा हूँ, क्योंकि ये गाड़ी में जो परफॉर्मेंस है बेहतरीन है. 0 to 100 जाती है 4.7 सेकेंड्स में. और वो फील कैसा होता है? वेल, स्पीड्स तो ये पलक झपकते ही पकड़ लेती है गाड़ी. तो आपको जो
मज़ा आने वाला है इसके साथ। वो जो किक इन द बैक फीलिंग होती है वो इसके साथ काफ़ी ज़्यादा मिलने वाली है। एंड ऑब्वियसली इस गाड़ी में साइलेंस काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, बिकॉज लग्जरी कार्स काफ़ी ज़्यादा साइलेंट होती है और यहाँ तो ये इलेक्ट्रिक कार है, तो भैया रोड की नॉइज़ बिल्कुल नहीं आती है, टायर नॉइज़ भी बिल्कुल नहीं आती है। और तो और जब आप इसको चलाते हो हाई स्पीड्स पर कंफर्टेबली आप क्रूज़ करोगे, आपको लगेगा आप अपने घर में आराम से सोफे पर बैठे हो। एंड ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो यहाँ पर आपको रीजन लेवल सेट करने के ऑप्शन मिलते हैं। 3 रीजन लेवल आप इसमें सेट कर सकते हो। एक ऑलमोस्ट निल होता है, बिल्कुल भी गाड़ी ब्रेकिंग नहीं करती है, खुद से आपको ब्रेक्स इस्तेमाल खुद करने पड़ेंगे। एक नॉर्मल होता है, वो थोड़ा आपको पेट्रोल गाड़ी जैसा रीजन ब्रेकिंग देता है, यानी इंजन ब्रेकिंग वाली फील देता है। और एक स्ट्रॉन्ग रीजन है, वो सबसे ज़्यादा ब्रेकिंग करता है जैसे भी आप पेडल से पैर हटाते हो, तो उसको आप 1 पेडल ड्राइव की तरह भी कंसीडर कर सकते हो और ट्रैफिक में वो काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होती है। अब ये गाड़ी इतनी ऊंची है, इस कारण आप सोचोगे कि ये कॉर्नर्स वगैरह में या फिर हाई स्पीड लेन चेंजेस में थोड़ी इशू दे सकती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही शानदार बॉडी कंट्रोल है एंड अडैप्टिव सस्पेंशन, एयर सस्पेंशन दोनों ही मिलता है, तो गाड़ी स्टिफन अप भी हो जाती है जब आप इसे स्पोर्ट मोड में डालते हैं। और अभी मैंने जो एक लॉन्च टाइप दिखाया था आपको, वो स्पोर्ट मोड में ही दिखाया था, तो इस कारण जो छोटे मोटे गड्ढे हैं वो आपको थोड़े बहुत फील होते हैं, लेकिन जब आप बड़े गड्ढों पे जाओगे तो ये गाड़ी उनके ऊपर से काफ़ी जल्दी आराम से सेल करती है। इसमें आपको लेवल 2 ADAS फीचर्स भी मिलते हैं, तो लेन कीप असिस्ट, अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। लेकिन फॉरवर्ड कोलिजन अवॉइडेंस असिस्ट मर्सिडीज़ की गाड़ियों का इंडिया में उतना ज़्यादा सफल नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है। तो यहाँ पर आपके जो ऐसे हाथ दिखा के आपको क्रॉस करने वाले पेडेस्ट्रियन हैं, वो इसको थोड़ा अपसेट कर सकते हैं, तो मेरी सलाह यही रहेगी कि आप उसको बंद करके रखें। और यहाँ पर कंपनी ने जो गाड़ी दी है उसमें ये हमेशा बंद ही रहता है। रेंज की बात करें तो यहाँ पर 809 किलोमीटर की ARAI रेटेड रेंज मिलती है, लेकिन कंपनी का कहना है कि रियल वर्ल्ड रेंज भी जो है वो 650 किलोमीटर के आसपास आपको मिल सकती है, तो वो डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया नंबर है। आप दिल्ली से चंडीगढ़ अप डाउन कर लोगे एक चार्ज में। इसी के साथ ये 200 किलोवाट की DC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है, और अगर आपको वैसा चार्जर मिल गया तो आप 10 से 80% चार्ज कर सकते हो मात्र आधे घंटे में। EQS SUV एक 7 सीटर इलेक्ट्रिक SUV है जिसकी एज सच कोई डिमांड तो नहीं है, लेकिन इसकी कीमत के हिसाब से ये एक लौती ऑप्शन है जो इस किस्म की परफॉर्मेंस और प्रैक्टिकलिटी देती है। जिन लोगों को अपने मल्टी करोड़ पार्किंग गैराज में एक स्टैंड आउट इलेक्ट्रिक कार भी ऐड करने का मन है, उनके लिए ये एक बढ़िया विकल्प है। अगर आप एक लाइट वेट, स्पोर्टी, फुल्ली फेयर्ड मोटरसाइकिल की तलाश में हैं, तो शायद ये मोटरसाइकिल आपके बकेट लिस्ट में होगी। TVS Apache RR 310 और 2024 संस्करण को काफ़ी सारे चेंजेस दिए गए हैं। इंजन को स्मूदर बनाने की कोशिश की गई है, सेफ्टी के हिसाब से कुछ चेंजेस किए गए हैं और कुछ नए कलर ऑप्शन एक हल्का सा डिज़ाइन में चेंज के साथ। लगभग 5 साल से ज़्यादा इस मोटरसाइकिल को मार्केट में हो चुका है एंड व्हाट रियली अपील टू द मासेस इज़ द डिज़ाइन। काफ़ी स्पोर्टी सा डिज़ाइन है, आक्रामक डिज़ाइन है, लेकिन अब जो चेंज किया गया है इंजन में, कंप्लेंट्स ढेर सारी थी, वाइब्रेशंस बहुत थे इस इंजन से, रिवर्स इंक्लाइन DOHC इंजन। अब इसका जो पिस्टन है, फोर्ज पिस्टन है, उसे लाइटर बनाने की कोशिश की गई है। इस मोटरसाइकिल का जो थ्रॉटल बॉडी है उसे बड़ा बनाने की कोशिश की गई है। जो एयर इनटेक के लिए वाल्व्स है वो भी पहले से चेंज कर दिए गए हैं। ओवरऑल जो ऑन पेपर पावर परफॉर्मेंस है वो पहले से बेहतर दिखाई पड़ रहा है। लगभग 4 PS की बढ़ोतरी हुई है। 38 PS ऑफ पावर इज़ व्हाट यू गेट। साथ ही साथ 29 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क में भी लगभग 1.5 से 2 न्यूटन मीटर की वृद्धि हुई है। द फोकस हैज़ बीन टू मेक इट मोर रिफाइंड, मोर पॉलिश्ड। और आज रेस ट्रैक पे जितना भी मेरा एक्सपीरियंस रहा इसके साथ, मैं यही कहना चाहूँगा, इट फील्स पेपी। पहले से थोड़ा इंजन काम लग रहा है, थोड़ा इंजन लग रहा है कि स्ट्रेसफुल कम है जब आप हाई रेव स्पेस मोटरसाइकिल को चलाते हैं। मेक नो मिस्टेक, देयर आर वाइब्रेशंस। पहले बहुत ज़्यादा बजी थी, वाइब्रेशंस थोड़े कम किए गए हैं, थोड़े चेंजेस यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं जो आपको रियल लाइफ राइडिंग में बहुत ज़्यादा मदद करेगी, स्पेशली अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग पे निकलते हैं। 6 स्पीड का इसमें गियर बॉक्स, स्लिप असिस्ट क्लच के साथ
लगभग 18,000 रुपये एक्स्ट्रा देंगे तो यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर द बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर। और ये क्विक शिफ्टर काफ़ी मज़ेदार है जब आप रेस ट्रैक या फिर हाईवे पे चला रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा क्लच एक्शन नहीं करना पड़ेगा। इट्स रियली वेरी प्रिसाइज कहना चाहूँगा ये क्विक शिफ्टर का जो काम है। यहाँ पे एक्सेसरी मतलब किट लगा सकते हैं, बिल्ड टू ऑर्डर के तहत कंपनी आपको फुल्ली मोटरसाइकिल को बना के देगी, ताकि अगर आप रेस ट्रैक पे जाना चाहें यू हैव अ फुल्ली किटेड मोटरसाइकिल। जैसे कि डायनामिक, जहाँ पे आपको एडजस्टेबल सस्पेंशन मिल जाता है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और ब्रास कोटेड चेन जैसे फीचर। वही डायनामिक प्रो एक ऐसा पैकेज है, लगभग 16,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, जहाँ फीचर्स हम देख रहे हैं RTR 310 से लिए गए हैं, जो इसे ज़्यादा सेफ बनाते हैं। जैसे कि क्रूज़ कंट्रोल आ चुका है, कॉर्नरिंग, यहाँ पे आपको कॉर्नरिंग ABS मिल जाएगा, कॉर्नरिंग क्रूज़ कंट्रोल जैसे फीचर्स मिल जाएंगे, और इसका श्रेय जाता है 6 स्पीड IMU को। सेगमेंट में बहुत कम ही मोटरसाइकिल होगी जहाँ पे इतना एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, और जितना हमने RTR 310 को चलाया है, इसका नेकेड वर्जन, ये सारी फीचर्स काफ़ी एप्टली काम करती है रियल लाइफ में। अगर आप F1 फॉलो करते हैं या हाई एंड रेस बाइक्स आपने देखी हैं तो आपने ऐसा कुछ देखा होगा बॉडी पैनल पे। इसे कहते हैं विंगलेट्स, और ये इनका जो काम है, इसे मोटरसाइकिल को एरोडायनामिकली स्टेबल बनाने में ये करता है मदद। और आज के राइड एक्सपीरियंस में बहुत ज़्यादा तो मुझे डिफरेंस फील नहीं हुआ, लेकिन ऑब्वियसली अब जब हाईवे पे चलाएंगे, स्ट्रेट हाईवे पे इस मोटरसाइकिल को चलाएंगे, ऑब्वियसली ये विंगलेट्स ज़रूर आपको मदद करेंगे। लेकिन ये भी कहना चाहूँगा, ऑफन राइडिंग की परिभाषा में कभी कभी हैंडलिंग थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ होता है। जब बेंड पे आप हैं तो थोड़ा सा विंगलेट का जो एप्लीकेशन है वो थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टिव हो जाता है। ये कलर आप जो देख रहे हैं, ये नया पेंट स्कीम है, इसके लिए आपको 5,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे। और इस मोटरसाइकिल को उतारा गया है 2,75,000 रुपीज़ एक शोरूम की कीमत पे। पहले के मुकाबले देयर हैज़ बीन अ प्राइस हाइक ऑफ 3,000 रुपीज़, जो मुझे लगता है काफ़ी नॉमिनल है। अगर आप इस मोटरसाइकिल को सारे एक्सेसरीज़ के साथ ख़रीदते हैं तो ये लगभग 3,25,000 एक शोरूम के ऊपर आपको पड़ जाएगी। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सा डिज़ाइन हाईलाइट यहाँ पे दिया गया है, जो इसे थोड़ा ख़ास बनाता है। क्लच असेंबली को यहाँ पे देखिए ट्रांसपेरेंट कवर से ढका गया है। जो राइडिंग ट्रायंगल है, राइडिंग पोस्चर है, थोड़ा सा आक्रामक है, लेकिन आपको स्पेस ढेर सारा मिल जाएगा, तो आप खुद को मूव अराउंड कर सकते हैं। टायर्स इसमें जो दिए गए हैं मिशेलिन के, दीज आर सुपर स्टिकी। स्टॉक टायर्स है, लेकिन फिर भी मुझे आज यहाँ पे काफ़ी पसंद आया है इनका जो ग्रिप है। ब्रेक्स की बात करें तो डुअल चैनल ABS आपको स्टैंडर्ड मिल जाता है, और इनकी बाइट भी मुझे ठीक ठाक लग रही है। टोटल 4 राइड मोड्स आर देयर। ट्रैक एंड स्पोर्ट पे आज हमने चलाया। देयर इज़ रेन एंड अर्बन एज वेल, जहाँ पे थोड़ा सा पावर टॉक सबड्यू हो जाता है। जो थ्रॉटल का मैप है, इनपुट, वो भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इसमें जो कलर TFT स्क्रीन वर्टिकली स्टैक्ड दिया गया है, इसमें आपको ब्लूटूथ पेयरिंग का फीचर मिल जाएगा। ये हमने RTR 310 के साथ भी देखा था, वही सारे फीचर्स इसमें भी ऐड कर दिए गए हैं। I hope you liked the show today. Hope to see you next week. In the meanwhile, you can join us on our YouTube channel NDTV Auto, or join us on our various social media platforms. Till we meet again, drive safe, wear your helmet, and take good care of yourself. Bye-bye.